Thank you for coming, ladies and gentlemen. Um, it's been a long journey since we began in January last year. I think the biggest challenge that we had when we began the show 15 months back was that the complete country waited with anticipation to see the life and journey of Ashoka. And today I can proudly say that Ashoka is right up there in as one of the top characters in India Loves. And I think it's been a great journey so far about his journey to reach where the show has reached till now. I think now the most important chapter in Ashoka's journey begins, which is his advent to the throne, his trials and tribulations against all odds, against a family that doesn't see him, as a country that sees him as the emperor. And I think I'd like to thank Mohit and the complete cast. I think it's we couldn't have got somebody more apt than Mohit to play the role of Ashoka. It is, Siddharth has done a great job so far. It is a very, very difficult role to play hereafter. And now I think the life we hand over the baton to you, Mohit, to take it from here on. Thank you. Thank you so much, Abhimanyu. I'm really honored to be part of this show. After I finished my last series, I was looking for something really extraordinary and larger than life. And when this character came in picture, actually, in fact, from day one, my entire family was a big fan of Chakravartin Ashoka Samrat. And personally, I always wanted to play this character. So somewhere deep down in my heart, I was waiting for the leap to happen so that I could fill in the gap. Yes, I am blessed to be here on the stage with this great cast and with a great producer like Abhimanyu. And definitely Colors has given me an opportunity to be a part of one of the greatest shows. So thank you so much. I'll try my best to entertain you guys. Thank you so much. It feels really nice कि आप लोग यहाँ पे आए इतनी दूर करजत. I hope आपकी journey अच्छी हुई हो. Thank you यहाँ पे आने के लिए. I feel really happy that I'm playing Karbaki. It's something I've dreamt of ever since I was a little girl. हमारे हाथों में मतलब मेरी friends के हाथों में ज़रूर Barbie doll के खिलौने होते थे पर मेरी हाथों में तलवार होती थी. तो आज उस सपने को जी रही हूँ तो बहुत 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 खुशी हो रही है. It's I guess almost every girl's dream to be a princess, and when you're a warrior princess, it feels all the more amazing. And I want to thank Kontalo, Rupali, Abhimanyu sir, Nilambar, and so many people who had the faith in me that I could do this, and because of which I'm standing in front of you guys. I hope हम सब मिलकर आपको बहुत entertain करें. Siddharth has done a mind-blowing job, and I hope हम उससे भी ज़्यादा आपको entertain करें. And we make him proud. We make Abhimanyu sir proud, Colors proud. I hope to give my best. Thank you. Thank you so much, Soumya. Thank you so much, Mohit. Thank you, Abhimanyu. बहुत ही अलग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत सारे शेड्स हैं इसके, तो आपको हमेशा कुछ अलग देखने मिलेगा इसमें. बहुत कुछ करना पड़ा मुझे. पहली बात तो मुझे पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ा कि क्या था और कैसे था, वो कैसी थी. एंड उसके साथ साथ बहुत चीज़ें की डिक्शन पे प्रैक्टिस करना होता है एंड डिफ़िकल्ट हिंदी होती है नॉर्मल डेली सोप से, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बहुत चैलेंजिंग रहा. मतलब आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस. हाँ, मैंने फॉलो किया है शो एंड सिद्धार्थ वाज अमेजिंग. तो आई जस्ट होप कि हमारे साथ भी वैसे ही अमेजिंग वाली फीलिंग सबको आए. शूट स्टार्ट हो गया है एंड अब टेलीकास्ट डेट पास आ गई है, तो येस वी आर शूटिंग. सभी बहुत अच्छे हैं. वही मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे सारे जो टीम वाले हैं बहुत अमेजिंग है, बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत सपोर्टिव हैं.
एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल है, अनएक्सपेक्टेड था इतना अच्छा, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। मैं ये नहीं बताऊंगी, आप शो देखना मेरा, ठीक है? थैंक यू। किरदार का नाम है राधा गुप्त। ये बेसिकली हिस्ट्री के हिसाब से इसके दो वर्जन मिलते हैं। एक के हिसाब से आचार्य चाणक्य जी का ग्रैंडसन था और एक के हिसाब से उनका शिष्य था। तो शो में भी हमने शिष्य ही इस्टेब्लिश किया हो, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इस किरदार में बेसिकली ख़ास बात यह है कि चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य जी से शुरू हुई। तो इसने बचपन से लेके वो चाणक्य जी के साथ ही पला बढ़ा है, उस सारी नीति को खुद ऑब्जर्व किया है। उसके अलावा इसका जो अपना फीडबैक होगा, इनपुट्स होंगी, वो मिला के एक चाणक्य का एक नया वर्जन बनेगा बेसिकली। पुराना तो चाणक्य जी प्ले कर ही चुके हैं, वो जोशी जी, वो तो कमाल आर्टिस्ट हैं। सो ये इसमें कुछ और इनपुट्स डाल के थोड़ा अलग शेड होगा। जैसे शो का भी शो का नहीं रहा, अलग लेवल का शो का होगा। सेम थिंग राधा गुप्त सिर्फ चाणक्य नहीं रहेगा अभी, ये चाणक्य को थोड़ा अलग वे में थोड़ा और शेड्स के साथ प्ले करेगा। तो ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नहीं, टोटली पॉजिटिव। विल बी अ ब्रेनी गाय। कितना मुश्किल रहा ये किरदार आपके लिए? मुश्किल इन द सेंस सबसे पहले तो लुक वाइज ही था, क्योंकि आपको बाल मुंडवाने। सो एज एन आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट पहले वो सोचता कि यार मैं ऐसे बन जाऊँ। सो वो एक था चैलेंज। थोड़ा 2-3 दिन सोचा, फिर सोचा कि नहीं, किरदार अच्छा है, करना चाहिए ऐसा। तो वो सबसे पहले किया। मेरे को वही ज़्यादा एक 2-3 दिन चला। जब किरदार सुना तो बहुत माइंड ब्लोइंग लगा मेरे को। शेड्स बहुत हैं इसमें करने के लिए। सो एज एन आर्टिस्ट मैंने इतना पॉजिटिव किरदार पहले निभाया नहीं है 10 साल में। ज़्यादा ग्रे शेड, वॉरियर, फाइटर, पुलिस वाला, वैसे सब किए हैं। तो मेरे लिए बहुत उस हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट मैं खुद के साथ कर रहा हूँ, लुक को लेके भी और एक्टिंग को लेके भी। तो लेट्स सी कैसा चलता है। तो लुक के लिए कितना सोचा आपने कि मतलब ये करवाना चाहिए, ऐसा होना सोचा मतलब खाली वही कंसर्न था कि यार अगर आप एक ये चीज़ कराते हो तो वो उतना वर्थ होना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने आप वो उस चीज़ को दो, उतना फुटेज भी मिलना चाहिए आपको, उतने आप दिखने भी चाहिए टीवी पे, यू नो। किरदार भी उतना पावरफुल होना चाहिए। ये बहुत माशाल्लाह बहुत पावरफुल किरदार है, क्योंकि इसके जैसे और शेड नहीं है। जैसे वॉरियर्स तो बहुत होंगे इसमें, भाई बहुत होंगे, राजा बहुत होंगे, रानियाँ बहुत होंगी। ये एक अपने लेवल पे एक अलग चीज़ है। ईद से पहले आपने शो को फॉलो किया है? हाँ, पूरी फैमिली देखती है शो का, कौन नहीं देखता यार, सब देखते हैं। क्या रिएक्शन क्या था जब पहले जब चाणक्य का जब ऑफर मिला आपको या रोल आपको जिस तरीके से? ये मैं क्योंकि फॉलो करता तो एक तो लड़का जो शो का था छोटा कमाल करता था, और जो जोशी जी चाणक्य प्ले किया वो तो ऑलरेडी सबको पता है, उसके बारे में तो क्या तारीफ़ करूँगी। सो दोनों चीज़ों ने बहुत इम्प्रेस किया था। तो मैं सोचता था कि यार कभी ऐसे शो में मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वही चाणक्य जिनको मैं लाइक करता था वैसा ही कुछ करने को मेरे को मिलेगा। सो दैट्स आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चाणक्य के रोल के लिए उन्होंने पहले बड़ा धमाल मचा रखा था, तो क्या लगता है कि मतलब उससे बेटर करने की कितनी मतलब? नहीं, उनके साथ तो मतलब कंपैरिजन वाला तो सवाल ही नहीं है ना। सिर्फ ये है कि उनको ऑब्जर्व किया है, उनको देखा है, उसमें से जो कुछ मुझे लगेगा कि राधा गुप्त के अंदर चाहिए वो उतना ही इंस्पिरेशन वाइज मैं उससे लूँगा। कॉपी टू कॉपी नहीं करूँगा। कॉपी टू कॉपी करने वाला एक्टर नहीं होता, पहली बात तो ना ही करना चाहिए किसी को, ना आप किसी को कॉपी कर सकते हो। तो वही है कि उसमें से जो भी हेल्प मिल पाएगी, उनका जो एक चाणक्य तो उन्होंने बहुत साल प्ले भी किया उसका ना, एक अलग उनका है पकड़ उस पर, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें से जो भी थोड़ा बहुत मेरे को लगेगा मैं अपने हिसाब से इसमें डालूंगा। लेट्स सी। जाते क्या कहना चाहिए? लव यू। अशोका देखते रहिए। थैंक यू। ओके मोहित, सबसे पहले जानना चाहिए कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसके किरदार के लिए? जी, चैलेंज तो अभी शुरू होगा, बिकॉज हम बहुत एक इनिशियल स्टेज पे हूँ अभी। मैंने अभी शो को ज्वाइन किया है। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कलर्स टीम का और प्रोडक्शन हाउस का, कॉन्टिन्यू का, जिन्होंने मुझे एक किरदार निभाने का मौका दिया। अब ये जर्नी शुरू होगी। सो जितने भी इस किरदार को निभाने में जितने भी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा वो डे बाई डे पता चलेगा। सक्सेसफुल शो के पार्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको अपनी डायरेक्शन टीम जो होती है उनकी गाइडेंस को फॉलो करना पड़ता है। सो आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। आई जस्ट हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स दैट सिद्धार्थ हैज़ लेफ्ट, एंड सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया है। सो मैं वो फॉलो करने वाला हूँ, जो डायरेक्शन टीम की गाइडेंस है उसे फॉलो करने वाला हूँ, एंड आई होप लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आए।
थोड़ी जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई हैं किरदार को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो सिद्धांत थे उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करा, काफ़ी लोगों की काम की गारंटी में। सो आपके लिए जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई? वेल आई डोंट पर्सनली थिंक कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, बट या ऐसा होता है कि एक बेंचमार्क सेट होने के बाद आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट जैसे कि मैंने बताया, मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं सबसे मिनिमम एफर्ट एक्टर ही डालता है। इस शो की VFX बहुत कमाल के हैं, डायरेक्शन बहुत कमाल की है। सो जो भी गाइडेंस जो भी मुझे दी जाएगी मैं उसे फॉलो करूँगा। एंड जिस तरह लोगों ने सिद्धार्थ को एक्सेप्ट किया है, आई गेस वो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे भी एक्सेप्ट करना है। अच्छा, पहले भी आपने माइथो किया था, अब हिस्टोरिकल, तो क्या मोहित ऐसे ही जाने जाएंगे या कोई रियलिस्टिक और सिटी टाउन का कैरेक्टर्स भी आप प्ले करते नजर आएंगे आगे? मैंने एक्चुअली उसे बहुत स्टडी किया है, तो आई गेस मैं इस स्टडी के बाद मैंने इसी रियलाइजेशन पहुंचा हूँ कि पहले मैंने त्रिशूल पकड़ा था, फिर मैंने तलवार पकड़ी है, और नेक्स्ट मैं एक गन पकड़ने वाला हूँ। तो आई गेस मैं एक कॉप का, एक आर्मी ऑफिसर का रोल करूँगा। सो या दीज आर द कैरेक्टर्स बेसिकली दैट गिव यू अ हाई व्हिच एन एक्टर ऑलवेज वांट्स टू हैव। सो मुझे अच्छा लगता है। भविष्य में देखिए जो अलग अलग ऑफर्स आएंगी, तो अगर कुछ ऐसी ऑफर्स हुई जो मुझे एक्साइट करेंगी, सो आई विल टेक देम। बट या इट्स ऑलवेज फन टू प्ले अ वॉरियर, इट्स फन टू प्ले अ किंग लार्जर देन लाइफ। या ओके, ऑफ स्क्रीन सारे एक्टर्स के साथ कितना अच्छा तालमेल बैठा है मोहित आपका सारे एक्टर्स के साथ, जो भी लीड के बाद आए हैं उनके साथ? जी बहुत अच्छा है। हमारे पास सुशीम का किरदार अंकित प्ले कर रहे हैं। अंकित एक बहुत कमाल के एक्टर हैं। मैंने उनका रज़िया सुल्तान बहुत फॉलो किया था। रज़िया सुल्तान का वो पार्ट है उनका एक शो का। देन हमारे दक्ष अजीत सिंह जो मेरे गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। एंड मर्यादा एक शो था उनका स्टार प्लस पे जो मैंने बहुत फॉलो किया था। एंड उसके बाद हमारे पास सौम्या है, सौम्या ने नव्या किया था। सो जब इतने बड़े बड़े कलाकार के साथ आपको मौका मिलता है काम करने का, तो ऑब्वियसली एंसेम्बल कास्ट जो होती है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है। सो आई एम रियली हैप्पी। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड हम लोग सिटी लिमिट से थोड़ा बाहर हैं, सो बॉन्डिंग थोड़ी और मजबूत हो जाती है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। सो आई होप वो यहाँ पर भी हो और लोगों को ये फैमिली अच्छी लगे और पसंद आए। क्योंकि काफ़ी मिस किया है मोहित आपके फैंस ने आपको, तो टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स व्हाट डू यू हैव टू से? Well, I'll say thank you so much for giving me the love that you have given, and I'm really sorry थोड़ा आपको वेट करना पड़ा, but I'll try my level best that I don't disappoint you. So keep the love coming in, and please watch Ashoka from 2nd May on Colors, and I'll try my level best to entertain you. Thank you so much. मोहित, न्यूज़पेपर में आपके और मौनी के ब्रेकअप को लेकर काफ़ी चीज़ें लिखी गई, क्या कहना चाहेंगे? वेल देखिए, लिखना और लिखना ये सब तो चलता रहता है। आई एम एन एक्टर, आई डू जस्ट डू माई जॉब, एंड आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट माई पर्सनल लाइफ, एंड आई एम एन एक्टर, यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी। So I've never said anything. I've always been quiet, and I will always be quiet about my personal life because that is something very personal to me. So I'm an entertainer, and I'll entertain you guys by playing Ashoka, and that's about it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah. It's okay. Done, guys. Thank you. Bye. इस किरदार के बारे में बताइए, काफ़ी अलग से अवतार में नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट अवतार है। मैं एक वॉरियर प्रिंसेस प्ले कर रही हूँ। योद्धा है ये, कर्व की बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। शी इज़ अ गुड स्वर्ड फाइटर, वेरी गुड स्वर्ड फाइटर। शी इज़ अ हॉर्स राइडर, एंड अबव ऑल शी इज़ द वन who rules Ashoka's heart. She is the one who turns Ashoka into a good human being. He's great, but Korvaki makes him greater. So Korvaki अशोक को महान से बहुत महान बनाती है, उसके दिल में बसती है। कर्वकी के दिल में अशोक बसते हैं। तो ये है वो कड़ी जिसके कारण चीज़ें अब आगे बदलेंगी, बढ़ेंगी। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये रोल कर्वकी? चैलेंजिंग तो काफ़ी रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने की हैं जो मैंने पहले ज़िंदगी में कभी ना की थी, और सोचती थी कि मैं करूँगी, पर लगता नहीं था, मतलब विश्वास नहीं होता था कि सच में मैं करूँगी। पर अब जैसे मैंने घुड़सवारी सीखी है, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी है, हिंदी सीखी है, इतनी दूर अपनी फैमिली से करजत में आके हम शूट कर रहे हैं इतनी धूप में, तो ये सब चीज़ें मतलब करना इट्स नॉट सो ईजी, बट मज़ा आता है करके। पहली बार मतलब इस तरीके से रोल में नजर
स्टारकास्ट जी। सो कितना अलग एक्सपीरियंस रहा? बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मेरे बाकी सारे शोज़ बहुत सिंपल सोशल थे। उन शोज़ में चैलेंज ये होता था कि मैं एक दूसरे किरदार में जा सकती हूँ कि नहीं, या मैं दूसरा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकती हूँ कि नहीं। पर ये सिर्फ कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की बात नहीं है, ये कैरेक्टर 200 BC 200 BC के टाइम का कैरेक्टर है। तो उस समय का ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करना बाकी सारी चीज़ों से डेफिनेटली बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड आई एम होपिंग टू डू अ गुड जॉब। आई होप यू गाइज लाइक इट। तो हमेशा से मतलब आप मतलब इस तरीके का रोल करना चाहती थी कि मतलब कि आ गया तो अच्छा लगा तो लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैंने 3 साल कुछ काम नहीं किया जस्ट बिकॉज मुझे यही करना था। इसके अलावा कुछ और मुझे पसंद नहीं आ रहा था इतना, या किसी में इतना दिल नहीं लग रहा था मेरा। बट ये कैरेक्टर और ये कौरवकी, एक स्ट्रॉन्ग वुमन, एक वॉरियर प्रिंसेस जो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है, जो अशोक तक को के दिल पे राज कर रही है और पूरी हिस्ट्री बदल दी। अगर उसने अशोक को रोका नहीं होता तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ और दिख रही होती, कुछ और ही होती हमारी हिस्ट्री। सो प्लेइंग कौरवकी वाज ऑलवेज one of the most important things, most important dream of my life, and it just got fulfilled. जैसे कि अभी देखा कि मतलब इंट्रोड्यूसिंग के टाइम पे आपने बताया कि आपका मतलब ड्रीम था, आप हमेशा से प्रिंसेस बनना चाहती थी। सो क्या रिएक्शन था जब मतलब पहली बार मैं सच बताऊं तो अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ही कौरवकी हूँ। मतलब जब मैं वहाँ पे स्टेज पे भी खड़ी थी तो मुझे लगा था शायद सच में मेरा सपना पूरा तो हो ही गया। पर अभी भी मैं अपने आप को बोलती हूँ, हाँ मैं कौरवकी हूँ। सो अभी भी मतलब मेरे डायरेक्टर्स ने, पुराने दोस्तों ने मैसेज किया, तुमने बताया नहीं। मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि अभी तक मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, शायद विश्वास हो जाए, फिर मैं आप सबको बता दूँगी। उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच। बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी ज़िंदगी के लिए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो मैं आपके थोड़े से लुक के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। निखित और निरूषा ने ये लुक किया है एंड they've done a marvelous job. It looks so pretty. I love the costume and the jewelry. इसका पिंक कलर, it blends on my skin tone so well, and the jewelry is so beautiful. If you look at this kada or maybe my headgear, ये बहुत मतलब सिर्फ मेरे लिए डिज़ाइन किया उन्होंने सोच के, तो it feels really good कि आपको प्रिंसेस की तरह कोई ट्रीट कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मिनट किस तरीके के किरदार? देखिए किरदार के बारे में मैं क्या बताऊं। किरदार क्योंकि ऐसा है जो जग जाहिर है, सबको पता है सुशीम क्या है। कोई ऐसा नहीं कि सुशीम की कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करें, नहीं, सुशीम इंट्रोड्यूस होता है। तो सुशीम कैरेक्टर वही है, लेकिन अब ये बड़ा सुशीम क्या करेगा वो मायने रखता है। मतलब ये तो श्योर है कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा, षड्यंत्र रचेगा। इसके पास अब सुपर पावर्स आ गई हैं, तो अब ये हीरो हीरोइन को चैन से सोने नहीं देगा। पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, ये तो कंफर्म है। अब क्या क्या करेगा ये आप देखिए। इस बार भी नेगेटिव, हमेशा आप नेगेटिव करते हो। हाँ, क्या अब ये तो मत पूछो। मैं अब बोलूँ कि मैं थक गया हूँ, तो आज से 10 दिन पहले मैं कह सकता था हाँ यार नेगेटिव, कि जब मैं अब करने लगा हूँ, मैं समझने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा यार नहीं, अच्छा कैरेक्टर है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए था। नेगेटिव करना क्या मतलब पसंद है कि मतलब किस तरीके के? नहीं देखिए, एज एन एक्टर उसको तो सब करना चाहिए, पर क्या होता है कि जो राह में मिले, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो ज़रूर करना चाहिए। तब ये नहीं सोचना चाहिए यार मैंने, ऐसे तो अमरीश पुरी साहब, रंजीत साहब या आज के टाइम के भी विलन्स हैं, ये सोचने लग गए तो फिर काम ही नहीं करेंगे। अगर कैरेक्टर अच्छा है और आप कैरेक्टर पे शूट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर था, तो अब तक मुझे 100 में से मतलब 90% लोग ये बोले यार तू सुशीम लग रहा है, तू सुशीम के जैसा है, तू सुशीम है, तू ही सुशीम होता। तो ये सुनना अच्छा लगता है, यही सुनने के लिए तो हम आए हैं। अब लुक से मैं पास हो गया हूँ, अब काम दिखा के देखते हैं कितना पास होते हैं, फेल होते हैं। तो ये इतना मैं सोचता नहीं कि इमेज या नेगेटिव लगता है, पर जब अच्छा है तो फिर क्यों बुरा, क्या प्रॉब्लम है। क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर के लिए, और मतलब कितना मतलब चैलेंजिंग है? चैलेंज तो अब शुरू होगा। अभी मैंने इसमें वैसे लेंसेज पहनना शुरू किए हैं। मैं बॉडी पे थोड़ा सा किया है, पहले मैं थोड़ा सा बल्की हो गया था, मैंने लीन किया अपने आप को। देन ये जूड़ा, डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा चेंज करूँगा, थोड़ा सा आवाज़ चेंज करूँगा, और बाकी देखेंगे सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से चेंजेस मैं सोचूंगा। अभी मैं इतना सोच नहीं सकता। कई बार आप क्या होते हो कि
होमवर्क करके आते हो, लेकिन जब आप सेट पर होते तो आपको लगता है नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो उस टाइम क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। इससे पहले जो प्ले कर रहे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो अब जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई हैं कि मतलब कितना मतलब आप बहुत अच्छा काम किया है सुमेध ने, तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं वही बता रहा था अभी कि 3-4 महीने पहले मैं रज़िया कर रहा था और मैं तब इतना टाइम नहीं मिलता था टीवी देखने में। मैं ऐसे ही इन कलर्स देख रहा था, अशोक ही आ रहा था और उसमें सुशीम का ही एक सीन चला रहा। तो मैंने देखते हुए कहा यार वाह क्या लड़का काम कर रहा है, गुड लुकिंग हैंडसम बंदा है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मुझे नहीं पता था 3 महीने बाद इस चीज़ को मुझे भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने 3 महीने पहले देखा था तो मेरे मुँह से वाव निकला था कि इसने कितना अच्छा काम किया है। मैं इसको परसों मिला भी था सुमेध को, मैंने बोला यार मैं फ़ैन हूँ तेरा और मतलब नर्वस हूँ मैं कि कैसे होगा, क्योंकि किसी के जहन से उसको ब्रेन वॉश करना, फिर आपको अपने बैठाना, वो भी ऐसा काम जो इतना अच्छा कर गया हो, तो मुझे अब उससे भी अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या होता है, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। इसी तरीके कोई टिप्स दिए आपने कुछ ऐसी बातचीत चली कि हाँ यार ये सिखाइए करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ? टिप्स ज़्यादा नहीं ली तो, क्योंकि क्या होता है देखिए एज एन एक्टर अगर एक डायलॉग हो, आप बच्चन साहब को दोगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे, शाहरुख खान को दोगे अपने हिसाब से बोलेंगे, आमिर खान को, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। उनका अपना एक स्टाइल था सुमेध का, मेरा एक अपना स्टाइल है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा टच ज़रूर रखूँगा उनका, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूँगा, तो फिर लोगों को फिर वही याद आएगा, मतलब वो याद रहे सबको, पर मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी चैलेंज चीज़ है जो धीरे धीरे टाइम लगेगा लोगों के भी माइंड में घुसने के लिए और ख़ुद को भी समझने में कि क्या क्या हो सकता है, और टाइम लगेगा। क्या कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में जो आपने पहना हुआ है? देखिए जो लुक है ना लड़कियों से कम नहीं है। 1.5 घंटा लगता है मुझे तैयार होने में मतलब मेरी नज़रों में लड़कियां ना अब यहाँ आ गई हैं जो कहती थी ना मेकअप में टाइम लगता है, हम लड़के से हटाया जल्दी आओ ना, प्लीज़ जल्दी आओ, पता चला है टाइम लगता है यार। और इतना कैरी करना ये वो सब, अब ये जुड़ा हुई लड़की है, ये सब कैरी करना, ये पकड़ना, ये देखो मैंने उतार रखे हैं, चुप चुके हैं मेरे को, ये इस इतना हैवी है कि ये आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिसने पहना है ये उसकी व्यथा वही समझ सकता है। अभी सामान डबल हो गया लेकिन ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा हो गया।